Hello, good evening, one and all. Today, lecture number 6, chapter number 9, optics. Yesterday, we started numerical based on reflection of light, right? So, today also we will continue some numerical, and thereafter we will start the new topic, refraction of light. So, let's begin with the new numerical, very simple numerical based on this. Only thing is that you have to remember, you have to consider the sign convention, Cartesian sign convention. उस पर ध्यान देना आप लोग को. फाइन. सो लेट्स बिगिन. सो न्यूमेरिकल नंबर 3 आएगा सीक्वेंस में. लेट्स रीड दी न्यूमेरिकल. आई विल गिव दिस असाइनमेंट, क्वेश्चन बैंक दूंगा मैं आपको ये न्यूमेरिकल का. तो उसका आपको साइड में वाइल वाचिंग दिस वीडियो यू हैव टू सी दिस, रेफर दिस क्वेश्चन बैंक. ओके. कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर. So immediately you should strike. Concave mirror है, focal length negative आएगा, which is on the left side. Is placed at a distance of 35 centimeter from a wall. Right? मतलब कि object distance दिया है. Fine. Focal length दिया है. So let's write the given quantity first. Given f is equal to 10 centimeter, but it is concave mirror. So give it negative sign. Don't forget to give this negative sign. If you are given wrong, not mention the sign, then entire numerical will become wrong. So be cautious while solving this. Then object distance 10 centimeter placed at distance of 35 centimeter from a wall. Right. So how far from the wall should an object be placed to get its image on the wall? तो यहाँ पे image distance दिया है. यहाँ पे जो image distance दिया है, right? Image is getting. तो what should the object distance? तो बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे जो डिस्टेंस दिया 35 वो ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, लेकिन वैसा नहीं है. द वॉल इज केप सो दैट द इमेज इज फॉर्म ऑन द वॉल. ओके. सो इमेज डिस्टेंस इज गिवन. सो यहाँ पे बच्चे गड़बड़ क्या कर सकते हैं, दे विल टेक दिस वी एज ए यू. वी को यू लेंगे वो. एक्चुअली इट इज इमेज डिस्टेंस एंड यू नो दैट इन द कॉन्केव मिरर यू विल गेट इमेज ऑन द लेफ्ट साइड. ओके. सो माइनस 35 सेंटीमीटर. Then what they ask, what should be the object distance? तो u क्या होगा? तो इतना तो आपको आंसर मालूम होना चाहिए कि ये प्रॉब्लम जब सॉल्व करोगे तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस शुड कम निगेटिव. निगेटिव आना चाहिए. अगर निगेटिव आपका आंसर नहीं आ रहा है, इसका मतलब कि समथिंग वेंट रॉन्ग वाइल सॉल्विंग न्यूमेरिकल. ओके. तो ये न्यूमेरिकल में, रे ऑप्टिक्स के न्यूमेरिक में आपको साइन कन्वेंशन देखना जरूरी है. सो हमारा फॉर्मूला क्या है? फार्मूला मिरर फार्मूला यूज करना है. तो मिरर फार्मूला इज 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u. वी नीड टू कैलकुलेट 1/u निकालना है. मेक 1/u एज अ सब्जेक्ट विच इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u v. सो 1/u इज इक्वल टू, सी यू हैव टू सॉल्व प्रॉपरली. सी हाउ आई एम सॉल्विंग ऑन द बोर्ड. 1/ माइनस 10 माइनस ऑफ माइनस 35. यहाँ पे साइन में गड़बड़ बंद करना. ओके. पुट इट प्रॉपरली. सो दिस विल बी 1/u इज इक्वल टू 1/ माइनस 10 माइनस माइनस क्या होगा, प्लस 1/35. सो दिस कैन बी रिटन एज 1/u इज इक्वल टू 1/35 माइनस 1/10. सो 1/u इज इक्वल टू, now see here the LCM will be 70. LCM क्या आएगा यहाँ पे, 70 आएगा. So I should multiply here 2, I should multiply here 2, I should multiply here 7, I should multiply here 7. So this will be how much, 2 minus 7 divided by 70. So this will be minus 5/70. तो 5 के टेबल में 17 का बात है 14. So 1/u is equal to minus 1/14. तो u is equal to, इसको उल्टा कर दो, रेसिप्रोकल ले लो, minus 14 सेंटीमीटर. सो आंसर इज करेक्ट. सो ऑब्जेक्ट शुड kept on the left side of the mirror so that you will get an image on the wall which is kept at 35 centimeter. Got it? So this is the answer. So please make a note of this. इसका डायग्राम आप ड्रॉ कर सकते हैं, जरूरत नहीं, लेकिन डायरेक्ट का आ जाएगा यहाँ पे. ओके. सो डायग्राम भी ड्रॉ कर सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं. नाउ क्वेश्चन नंबर 4.
An object is placed at a distance of 40 centimeter on the principal axis of concave mirror of radius of curvature 30 centimeter. By how much does the image move if the object is shifted toward the mirror through 15 centimeter? How much does the image move if the object, अभी ऑब्जेक्ट को मूव किया है, पहले ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा था, ऑब्जेक्ट वॉज केप्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर, राइट, एंड व्हाट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉनकेव मिरर इज 30 सेंटीमीटर. तो पहले हम गिवन लिख लेंगे क्या क्या दिया है. सो लेट्स राइट द गिवन क्वांटिटी फॉर दिस. गिवन क्वांटिटी आर u is equal to minus 40 centimeter. Whether it is convex or concave mirror, we always keep the object on the left side of the mirror. So object distance is always negative, to be taken as negative. What is the radius of curvature for concave mirror? So here r is equal to minus 30 centimeter. The radius of curvature for concave mirror is always negative. Focal length also negative. Okay. So from this we can write f is equal to minus 30 upon 2, which is equal to minus 15 centimeter. So we got the focal length, we got the object distance. Now we can find the image distance. So simple. So let's find v, image distance. V is equal to question mark. Same formula to be used. 1 upon f is equal to 1 upon u plus 1 upon v. Right? Then 1 upon v is equal to 1 upon f minus 1 upon u. Just substitute further 1 upon minus 15 minus 1 upon minus 40. So here 1 upon v is equal to ये प्लस हो जाएगा minus 1 upon 15 plus 1 upon 40. So this can be written as 1 upon 40 minus 1 upon 15. प्लीज़ इसको हमेशा चेंज कर लो क्योंकि गड़बड़ हो जाता है अगर आप चेंज नहीं करोगे तो. मान लीजिए इसको माइनस भी रख सकते हैं, इसको प्लस भी रख सकते हैं, लेकिन एलसीएम फाइंड करने में गड़बड़ हो जाता है सबट्रैक्शन में. सो डोंट डू दैट मिस्टेक. सो 1 अपॉन वी इज इक्वल टू, बच्चों यहाँ पे एलसीएम आएगा 120 क्योंकि 15 8 जा 120, राइट. 15 6 जा 120, 15 7 जा 105, 15 8 जा 120 एंड 43 जा 120. So LCM will be 120. तो आई शुड मल्टीप्लाइड ईयर 3, मल्टीप्लाइड ईयर 3, यहाँ पे मल्टीप्लाइड 8 आएगा, यहाँ पे भी 8 आएगा. सो दिस कैन बी रिटन एज 3 minus 8 which is equal to minus 5 upon 120. 5 1 जा 5 2 जा 5 4 जा, so this will be minus 1 upon 24. So this is 1 upon v है तो हमको v निकालना है. v is equal to minus 24 centimeter. So we got this first image distance, right? When the object was kept at 40 centimeter, that time we got the image at minus 24 centimeter. And now what they ask the second part? In the second part, how much does the image move? How much does the image move if the object is shifted towards the mirror 15 centimeter through 15 centimeter? मतलब पहले 40 पे रखा है, अभी वो 15 सेंटीमीटर शिफ्ट किया है इधर राइट साइड पे. ओके, तो व्हाट विल बी द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कम हो जाएगा, 40 माइनस 15 तो 25, राइट. सो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट ए 25 सेंटीमीटर. तो अभी यहीं पे करता हूँ मैं. इन द सेकेंड केस u इज इक्वल टू, और u2 ले लो, इसको v1 ले लेते v2 इज इक्वल टू, राइट, v1 कर दो फॉर योर कन्फर्मेशन. ओके, ये v1 कर दो बस, दैट्स ऑल. u2 इज इक्वल टू 40 माइनस 15 विच इज़ 20. पहले माइनस 40 था, उसमें से माइनस कर दो, माइनस ऑफ 15 कर दो, राइट. तो ये आ जाएगा आपका माइनस 40 प्लस 15 विच इज़ 25 सेंटीमीटर, माइनस 25 सेंटीमीटर. तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज माइनस 25 सेंटीमीटर. तो v2 निकालना है. फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर विल नॉट चेंज, वो तो वही रहेगा. तो f इज इक्वल टू माइनस 15 सेंटीमीटर. तो 1 अपॉन v2 इज इक्वल टू, मैं डायरेक्ट ले लेता हूँ यहाँ पे, f माइनस 1 अपॉन u2 which is 1 upon
एफ कितना है -15 माइनस ऑफ -25. ओके, तो दिस कैन बी रिटन एज 1/v2 इज इक्वल टू 1/25. यहाँ पे एलसीएम कितना आएगा 75. एलसीएम विल बी 75. आई विल जस्ट डू इट हियर. So 1/v2 is equal to 75 is the LCM. I should multiply here 3. I should multiply here 5 to make the denominator same. So 3 minus 5, which is -2/75. So V2 is equal to -75 divided by 2, which is 37.5 minus, okay, which is on the left side. So I will get the image at a distance of -37.5 centimeter if the object is shifted toward the mirror. जितना ऑब्जेक्ट मिरर के पास जाएगा उतनी इमेज उसके दूर दूर जाती है. ये कंसेप्ट यूज करना है. तो आपका आंसर सही है कि नहीं वो भी हम पता कर सकते हैं. पहले कितना था -24 सेंटीमीटर. अभी ना ऑब्जेक्ट को जब कॉन्केव मिरर के तरफ शिफ्ट करते तो इमेज दूर जाती है. अगर ऑब्जेक्ट दूर जा रहा है तो इमेज मिरर के पास में आती है. तो ये कंसेप्ट आपको यूज़ करना है. तो यू कैन टैली योर आंसर वेदर आपका आंसर सही है गलत है. अगर कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ है तो आप टैली कर सकते हैं. तो ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत रखना जरूरी है. सो टेक अ स्क्रीनशॉट. चलो लेट्स गो ऑन द नेक्स्ट न्यूमेरिकल. Numerical number 5. So let's look at numerical 5. An object is kept in front of concave mirror of focal length 15 centimeter. So f is equal to given f is equal to -15 centimeter. कॉन्केव मिरर इसलिए नेगेटिव. द इमेज फॉर्म इज 3 times द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट. मतलब मैग्निफिकेशन दिया है यहाँ पे. सो इमेज इज मैग्निफिकेशन इज 3 times. बराबर. तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं H2 इज इक्वल टू 3 times H1. दिस वी कैन राइट. बराबर. 3 times द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट. कैलकुलेट द 2 पॉसिबल डिस्टेंसेस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर. ओके, अभी देखो बच्चों हमने जो 6-7 डायग्राम ड्रॉ किया है उसमें वी हैव ड्रॉन वी हैव गॉट इमेज मैग्नीफाइड इमेज 2 times. वन इज वर्चुअल, वन इज रियल. एक बार हमको रियल इमेज मिली एंड एक बार हमको वर्चुअल मिली. सो फर्स्ट वी विल कैलकुलेट द रियल इमेज. तो रियल इमेज अगर हमको चाहिए तो वेयर शुड वी कीप द ऑब्जेक्ट इन बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर. वी शुड कीप द ऑब्जेक्ट इन बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर. अगर फोकस पर रखी we will get the image at infinity. बराबर. और मैग्नीफाइड. और इफ द ऑब्जेक्ट इज kept between focus and pole of the mirror we get virtual image. तो ये सब कंसेप्ट आपको यहाँ पे अप्लाई करना है. ओके, सो लेट्स राइट एज द मिरर इज कॉन्केव सो फोकल लेंथ इज नेगेटिव, राइट. सो व्हेन द इमेज फॉर्म रियल, when the image form is real. अगर रियल इमेज है वी आर गेटिंग इन्वर्टेड. हम लोग क्या इन्वर्टेड मिल रही है, राइट. सो m इज इक्वल टू H2 अपॉन H1 विच इज इक्वल टू -v अपॉन u. सो विच इज इक्वल टू -3. तो -3 क्या इंडिकेट करता है? इन्वर्टेड इमेज. ओके, सो हाउ कैन वी राइट दिस इम्प्लाइज दैट. ये तो फॉर्मूला हमारा m इज इक्वल टू -v अपॉन u, बट द इमेज इज real. So for real image it is negative. So let's write the expression for this v. So v minus v is equal to -3u, which implies that v is equal to +3u. ये +3u कैसे आया? From this relation we know the formula for magnification, ratio of
image distance, image size upon object size, which is equal to negative image distance upon object distance, but the negative sign is for real image. Real image is inverted, that's why we have put here minus. So let's write the expression for image distance, v is equal to plus 3u, right? फोकस दिया है, so we can find the object distance. अभी object distance हम find कर सकते हैं, right? So 1 upon f is equal to 1 upon u plus 1 upon v. We know the formula for object distance. This implies that 1 upon u is equal to 1 upon f minus 1 upon v. So 1 upon u is equal to focal length कितना है, minus 1 upon 15 minus of this is 3u 3u आया है, प्लस है, ओके, पुट द वैल्यू ऑफ v हैज द प्लस 3u. नाउ अभी क्या करेंगे, इसको इधर लाएंगे, राइट? सो वी विल इम्प्लाई दिस 1 अपॉन 3u प्लस 1 अपॉन u विच इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 15. इसका एलसीएम कितना आएगा, 3 आएगा, तो यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाई 3 करूँगा, यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाई 3 करूँगा. सो दिस विल बी 1 प्लस 3 डिवाइड बाई 3u विच इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 15. तो 4 अपॉन 3u इज इक्वल टू 1 अपॉन माइनस 1 अपॉन 15. तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते 4 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 1 अपॉन 15 विच इज इक्वल टू 3u. 15 बहुत ज़्यादा कितना होता है, 60 माइनस 60 विच इज इक्वल टू 3u. सो हियर u is equal to minus 20 centimeter. So we got the object distance is minus 20 centimeter. Means the object should kept on the left side of the mirror. Okay. अभी हम लेंगे when the image form is virtual. The second possible case क्या है? Second possible case when the image is virtual. फाइन, वही कंसेप्ट लेंगे, दैट इज मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू h2 अपॉन h1 विच इज इक्वल टू माइनस v अपॉन u विच इज इक्वल टू. नाउ वर्चुअल इमेज है इरेक्ट है, मैग्नीफाइड है, राइट? सो दैट विल बी द, यहाँ पे प्लस 3 आएगा. आई विल टेक ओनली 3 हियर, दिस विल बी 3. फाइन. नाउ लेट्स राइट द फॉर्मूला फॉर v. फिर यहाँ पे क्या आएगा, सो माइनस v इज इक्वल टू 3 टाइम्स u. ओके, सो v इज इक्वल टू माइनस 3u. दिस इज द इमेज डिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. ओके, सॉरी. तो यहाँ पे 1 अपॉन f इज इक्वल टू 1 अपॉन u प्लस 1 अपॉन v. So let's write the formula for object distance. 1 upon u is equal to focal length वही रहेगी minus 15. अभी इसको इधर लेके आएंगे. माइनस 3 आएगा, दिस विल बी माइनस 3. तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. तो u को उधर शिफ्ट करेंगे, माइनस 15 को इधर लाएंगे. सो 1 अपॉन 15 इज इक्वल टू 1 अपॉन 3u माइनस 1 अपॉन u. व्हाट आई हैव डन हियर, आई जस्ट शिफ्टेड दिस माइनस 15 अपॉन लेफ्ट साइड एंड 1 अपॉन u ऑन द राइट हैंड साइड, क्योंकि ये बड़ा है ना 3u, इसलिए उसको उधर रखा है पॉजिटिव. सो दिस विल बी 1 अपॉन 15 इज इक्वल टू
यहाँ पे भी एलसीएम कितना आएगा 3u, एलसीएम 3u. सो आई शुड मल्टीप्लाइड हियर 3, तो यहाँ पे क्या आएगा 1 माइनस 3 डिवाइड बाय 3u. सो दिस विल बी -2 अपॉन 3u. क्रॉस मल्टीप्लाई करते 15 मल्टीप्लाई बाय -2 विच इज इक्वल टू 3u. तो u इज इक्वल टू 15 टू ज़ा 30 -30 डिवाइड बाय, ओके ये 3 इधर आ जाएगा 3 विच इज -10 सेंटीमीटर. So object distance will be -10 centimeter, which is kept on the left hand side. So we got this. Take a screenshot. Now numerical number 6, इसका screenshot ले लो. So numerical number 6. Look at the numerical. When the distance of an object from a concave mirror is decreased from 15 centimeter to 9 centimeter, मतलब u1 is 15, u2 will be 9. The image gets magnified 3 times than that of the first case. बराबर है, क्योंकि जब भी ऑब्जेक्ट इज मूविंग टूवर्ड्स कॉन्केव मिरर तो साइज ऑफ द इमेज इंक्रीजिंग, मैग्निफिकेशन बढ़ता है उसका. बराबर. कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, यहाँ पे f निकालना है, f दिया नहीं है. ओके, बट द मैग्निफिकेशन इज गिवन. ओके, देयर इज वन फार्मूला फॉर मैग्निफिकेशन. गिवन लिख लेते पहले. u इज इक्वल टू गिवन इन द फर्स्ट केस u1 इज इक्वल टू -15 सेंटीमीटर. तो पहले केस में मैग्निफिकेशन कम है और सेकंड केस में मैग्निफिकेशन ज़्यादा है, मतलब डिमिनिश इमेज मिलेगी. ओके, सो देयर इज वन फॉर्मूला फॉर मैग्निफिकेशन इन टर्म्स ऑफ फोकल लेंथ. m इज इक्वल टू f अपॉन f माइनस u. ये डेरिवेशन है उसका. ओके, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है. सो राइट दिस. m इज इक्वल टू focal length f upon f minus of -15. So this will be f upon f plus 15. So magnification m is equal to f upon f plus 15. So give it equation 1 for first case. In the second case u2 is equal to -9 सेंटीमीटर. वी हैव टू अप्लाई द सेम फॉर्मूला. ओके, तो क्या बनेगा m इज इक्वल टू f अपॉन, इसको m1 लेते, दिस इज m2. ओके, कैन टेक m1 m2 और m डैश ले सकते जो भी है, राइट. m2 ले लेते. सो ये क्या आएगा f माइनस ऑफ -9 विच इज इक्वल टू f अपॉन f प्लस 9. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. बट यहाँ पे दिया है m2 इज इक्वल टू 3 टाइम्स m1. सेकेंड केस में मैग्निफिकेशन ज़्यादा है, तो व्हाट वी कैन राइट m2 और m1 अपॉन m2 कहते हैं, m2 अपॉन m1 विच इज इक्वल टू 3. तो यहाँ पे m2 अपॉन m1 लेंगे विच इज इक्वल टू f अपॉन f प्लस 9 डिवाइड मैं इसको उल्टा कर देता हूँ इंटू f प्लस 15 अपॉन f. चलेगा, रेशो लिया मैंने, दिस डिवाइड बाय दिस किया, इससे डिवाइड किया है, इक्वेशन 2/1 किया है. तो यहाँ पे एफ कट हो जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका f प्लस 15 डिवाइड बाय f प्लस 9. बट दिस इज इक्वल टू m2 अपॉन m1. लेकिन m2 अपॉन m1 कितना है, दैट इज इक्वल टू 3. m2 अपॉन m1 की वैल्यू यहाँ पे मैंने डाली 3. ओके, तो अभी ये क्रॉस मल्टीप्लाई करते, f प्लस 15 इज इक्वल टू 3 टाइम्स f प्लस 9. तो ये क्या आएगा बच्चों, f
प्लस 15 विच इज इक्वल टू 3f प्लस 27। अभी सॉल्व कर दे इसको, AF को उधर लेके आते, 27 को इधर लाते। सो 3f माइनस एफ इज इक्वल टू 15 माइनस 27 विच इज इक्वल टू 15 माइनस 27 कितना क्या 12 राइट माइनस 12। तो दिस विल बी 2f इज इक्वल टू माइनस 12। सो f इज इक्वल टू माइनस 12 अपॉन 2 विच इज माइनस 6 सेंटीमीटर। So we got the minus 6 centimeter is the focal length and it is a concave mirror। तो concave mirror की focal length नेगेटिव आनी चाहिए, तो बराबर है। So our answer is correct। अगर गलती से प्लस आ रहा है तो मतलब समथिंग कुछ तो गड़बड़ है, कैलकुलेशन में गड़बड़ है राइट। तो नेगेटिव आ रहा है, concave mirror है, focal length नेगेटिव होगी। सो टेक अ स्क्रीनशॉट। Seventh. Okay, look at this. Two objects A and B, when placed one after another in front of concave mirror of focal length 10 centimeter, form images of same size. सेम साइज के इमेज मिल रही राइट। दो ऑब्जेक्ट है A एंड B, लेकिन एक के बाद एक रखा है उसको सेम साइज। साइज ऑफ ऑब्जेक्ट A इज 4 टाइम्स साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। हाँ ऑब्जेक्ट का साइज लेकिन अलग अलग है राइट, लेकिन इमेज विल बी सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट राइट, फॉर्म इमेजेस ऑफ सेम साइज। साइज ऑफ ऑब्जेक्ट A इज 4 टाइम्स दैट ऑफ B if object A is placed at a distance of 50 centimeter from the mirror, what should be the distance of B from the mirror? पर अभी गिवन लिखते हैं यहाँ पे क्या क्या लिखा है। इट इज कॉनकेव मिरर, इट इज अ कॉनकेव मिरर। तो पहले क्या क्या दिया है वो लिख लेते प्रॉपरली गिवन। तो देखो यहाँ पे गिवन फोकल लेंथ इज गिवन राइट, and be even another front of concave mirror focal length 10 centimeter. तो f is given minus 10 centimeter. Okay, then height of object दिया है, object size is different right. So h1a and b, h1a height of object A, h1a पहली कंडीशन h1a is equal to height of object A, okay, h2a height of image A राइट। सो A और B क्या है, A क्या ऑब्जेक्ट है, h1 h2 क्या है ऑब्जेक्ट और इमेज साइज। देन h1b इज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट B, ऑब्जेक्ट B, h2b हाइट ऑफ इमेज B। इसमें अभी कंडीशन क्या दिया है, दोनों का इमेज सेम है, ऑब्जेक्ट का साइज अलग अलग है राइट। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम द गिवन द h2a एंड h2b बोथ आर सेम, बट h2a इज इक्वल टू h2b गिवन। देन ऑब्जेक्ट का साइज भी दिया है यहाँ पे, ऑब्जेक्ट का साइज है h1a इज साइज ऑफ ऑब्जेक्ट A इज 4 टाइम्स ओके। तो ऑब्जेक्ट का h1 इज ग्रेटर, तो 4 टाइम्स ऑब्जेक्ट ऑफ B, दिस इज ऑल्सो गिवन। ये सब दिया हुआ है राइट। उन्होंने क्या पूछा है, व्हाट शुड बी द डिस्टेंस ऑफ B फ्रॉम द मिरर, मतलब यहाँ पे VB निकालना है, यहाँ पे निकालना है VB राइट। व्हाट शुड बी द डिस्टेंस ऑफ B फ्रॉम द मिरर, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस UB निकालना है, वी हैव टू कैलकुलेट UB। तो वही फार्मूला हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे फॉर ऑब्जेक्ट A। फॉर मैग्निफिकेशन में दिया है
एम ए इज द मैग्निफिकेशन ऑफ ए, एम बी क्या है, मैग्निफिकेशन ऑफ बी, मैग्निफिकेशन ऑफ बी। ओके, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑफ ए दिया है विच इज -50 सेंटीमीटर। ओके, विच इज -50 सेंटीमीटर। यू बी निकालना है, यू बी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। फिर अभी वही सा फॉर्मूला यूज करेंगे हम यहाँ पे, we'll use the same formula here. So for object A, okay, MA, magnification for MA is equal to H2A upon H1A, which is equal to this F upon F minus UA. For object B, magnification of B is equal to H2B upon H1B, which is equal to F upon F minus UB. दिस एम ए एंड एम बी, बट यहाँ पे एम ए अपॉन एम बी अभी रेशियो लेंगे हम लोग। सो विल टेक द रेशियो एम ए अपॉन एम बी विच इज इक्वल टू, हमको ये निकालना है, यू बी निकालना है ना, यू ए दिया है। सो एफ अपॉन एफ माइनस यू सफिक्स ए मल्टीप्लाइड बाय, इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो एफ माइनस एफ बी, सॉरी यू बी, एफ माइनस यू बी डिवाइड बाय एफ, एफ एफ कट हो जाएगा, और एम ए अपॉन एम बी इज गिवन, एम ए अपॉन एम बी that is 1/4, magnification दिया है रेशियो, राइट। सो इट इज ऑफ द साइज, सो एम ए अपॉन एम बी विल बी 1/4, यहाँ पे दिया है इमेज। सो 1 एम अपॉन एम बी इज 1/4 इज इक्वल टू एफ माइनस, एफ दिया -10 माइनस यू बी डिवाइड बाय -10 -50, माइनस ऑफ -50 आएगा, ओके, माइनस ऑफ -50 आएगा तो प्लस हो जाएगा वो। सो ये आ जाएगा आपका -10 माइनस यू बी डिवाइड बाय -10 + 50। सो ये आएगा -10 माइनस यू बी डिवाइड बाय, दिस विल बी 40। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये तो 4 1 जा 4 10 जा, यहाँ पे भी कर सकते हैं। ओके, तो 1 इज इक्वल टू -10 माइनस यू बी डिवाइड बाय 10, इधर से इधर आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज 10 इज इक्वल टू -10 माइनस यू बी। ओके, तो यू बी इज इक्वल टू 10 + 10, इधर से इधर आ जाएगा, कट नहीं होगा वो, माइनस यू बी, सो विच इज़ 20। तो यू बी इज इक्वल टू -20 सेंटीमीटर। तो यू बी इज इक्वल टू -20 सेंटीमीटर इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। सही है, कॉन्केव मिरर है ना, तो हम ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड में रखेंगे। ओके, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं, हमने यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज़ किया है मैग्निफिकेशन वाला, एफ अपॉन एफ माइनस यू वाला, और उसके हिसाब से सॉल्व किया है। मे बी हो सकता है ये टाइप के न्यूमेरिकल आपको बोर्ड में नहीं आएंगे 11th बोर्ड में, बट दिस विल हेल्प यू लॉट फॉर CET GE और एडवांस के लिए काम में आएगा। फाइन, तो चलो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अगला जो न्यूमेरिकल है थोड़ा ट्रिकी है, एंड विच इज़ द सॉल्व न्यूमेरिकल फ्रॉम द टेक्स्ट बुक का सॉल्व न्यूमेरिकल है, तो थोड़ा सा ट्रिकी हो। सो नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 8, 8वां न्यूमेरिकल है क्वेश्चन बैंक के हिसाब से। रेक्टेंगुलर शीट ऑफ लेंथ 30 सेंटीमीटर एंड ब्रेड 3 सेंटीमीटर is kept on the principal axis of concave mirror of focal length 30 centimeter. Draw the image formed by the mirror on the same diagram as far as possible on a scale. Right?
तो यहाँ पे थोड़ा सा हमको डायग्राम इमेजिन करना पड़ेगा, राइट। तो पहले डायग्राम इमेजिन करेंगे। दिस इज माय कॉनकेव मिरर, ये कॉनकेव मिरर है। दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये मैं यहाँ पे ले लेता हूँ सेंटर ऑफ कर्वेचर, मिडल में आएगा फोकस, ओके। एंड फोकस इज 30 सेंटीमीटर, मतलब ये जो डिस्टेंस है 30 होगा, ये कितना होगा 60 होगा। तो ये कितना लेंगे, मैं 50 लूँगा यहाँ पे, और यहाँ पे 40 आएगा। यहाँ पे मैं लूँगा 20 और यहाँ पे मैं लूँगा 10। आगे भी बढ़ा सकता हूँ, 70, यहाँ पे 90 और यहाँ पे 100। जस्ट मार्क ऑन द मीटर स्केल जैसे उसको मार्क कर लेना है, ओके। नाउ केप्ट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर, ड्रॉ द इमेज। तो यहाँ पे द ऑब्जेक्ट विल बी फ्रॉम द गिवन कंडीशन, ओके। अभी यहाँ पे रेक्टेंगुलर शीट है तो दो एजेस हो गए यहाँ पे। तो एज ए बी सी डी, जो ए बी एज होगा दैट इज ऑन एट अ डिस्टेंस ऑफ 45 सेंटीमीटर। तो मैं यहाँ पे लूँगा एज, दिस इज एज, ओके। और 30 है ना, तो 45 प्लस 30 कितना होता है 75। तो 75 यहाँ पे आएगा, तो ये आएगा 75। इसका लेंथ जो है वो 30 सेंटीमीटर है एंड द ब्रेथ इज 3 सेंटीमीटर। तो ये जो 3 सेंटीमीटर ब्रेथ है और जो लंबाई है दैट इज 30 सेंटीमीटर। अभी ये रेक्टेंगुलर शीट है विच इज केप्ट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, राइट। अभी इसका इमेज कहाँ मिलेगा वो देखना है। तो फॉर अभी मैं यहाँ पे कुछ एज्यूम करता हूँ, दिस इज ए, दिस इज बी, मतलब ये जो पॉइंट है दिस पॉइंट इज बी, दिस इज बी, सो दिस विल बी सी एंड डी, ओके। दिस पॉइंट विल बी सी एंड दिस एज विल बी डी, राइट। तो यहाँ पे पहले हम क्या करेंगे, ए बी का इमेज कहाँ मिलेगा वो देखेंगे एंड सी डी का इमेज कहाँ मिलेगा वो निकालेंगे एंड उसके बाद फिर वी विल फाइंड दैट, ओके। तो इसका ये डायग्राम ड्रॉ करेंगे फ्रॉम द गिवन कंडीशन फॉर एज ए बी, फॉर एज मतलब साइड, कड़ा, ओके। तो ये जो ए बी है उसके लिए हम लिखेंगे अभी यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है, यू ए बी इज इक्वल टू विच इज एट डिस्टेंस ऑफ 45 सेंटीमीटर। तो ऑन द लेफ्ट साइड है तो -45 सेंटीमीटर, बराबर। फोकल लेंथ कितना है कॉनकेव मिरर का, एफ इज इक्वल टू -30 सेंटीमीटर, कॉनकेव इसलिए नेगेटिव, बराबर। तो हमारा फार्मूला क्या है, यूजिंग फार्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/UAB प्लस 1/VAB। इमेज डिस्टेंस फॉर AB एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर AB इज गिवन, सो दिस कैन बी रिटन एज, इसको इम्प्लाइज करता हूँ मैं। सो 1/VAB इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/UAB, बराबर। सो 1/VAB इमेज डिस्टेंस ऑफ AB इज इक्वल टू, ये AB का इमेज कहाँ मिलेगा वो फाइंड करना है, लोकेशन ऑफ इमेज ऑफ द AB। सो दैट विल बी 1/-30 माइनस ऑफ UAB कितना -45 विच इम्प्लाइज, सो ये क्या आएगा -1/30 प्लस 1/45 विच इम्प्लाइज 1/45 माइनस 1/30। अब यहाँ पे एलसीएम कितना आएगा 90, एलसीएम विल बी 90। 1/VAB इज इक्वल टू, यहाँ से 90 लाएँ तो मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे 2 करना पड़ेगा, यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय 3 करना पड़ेगा, सो इट बिकम 90। तो क्या आएगा बच्चों, 2 - 3 डिवाइड बाय 90 विच इज इक्वल टू -1/90, right? So which implies VAB is equal to -90 सेंटीमीटर। मतलब इसका जो इमेज है AB का, दैट इमेज विल गेट एट 90, यहाँ पे मिलेगी, ओके। तो अभी इमेज मिलने का जिसका मैग्निफिकेशन फाइंड करेंगे, तो मैग्निफिकेशन कितना होगा। सो लेट अस फाइंड द मैग्निफिकेशन फॉर MEB, मैग्निफिकेशन MEB, मैग्निफिकेशन, क्योंकि मैग्निफिकेशन भी निकालना पड़ेगा, मैग्निफिकेशन फॉर AB विल बी, ओके। तो MEB का फॉर्मूला क्या हमारा, MEB इज इक्वल टू मैग्निफिकेशन इक्वल टू माइनस इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस VAB अपॉन UAB ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, राइट। तो माइनस ऑफ -90 डिवाइड बाय
ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है -45, तो ये क्या आएगा, ऊपर प्लस हो जाएगा, प्लस 90 अपॉन -45, तो विच इज़ -2। तो यहाँ पे मैग्नीफिकेशन नेगेटिव आ रहा है, तो मैग्नीफिकेशन नेगेटिव मतलब उसका जो इमेज है दैट विल बी इन्वर्टेड डाउनवर्ड, नीचे आएगा, और उसका मैग्नीफिकेशन कितना है 2 टाइम्स। ओके, मतलब ये अगर 3 सेंटीमीटर है AB का, तो उसका जो इमेज साइज है दैट विल बी 6 सेंटीमीटर एंड विच इज एट 90। ऑब्जेक्ट इमेज डिस्टेंस कितना है 90, तो यहाँ पे आएगा वो समवेयर हियर, यहाँ पे आएगा। सो दिस विल बी द ये आएगा हमारा यहाँ पे A' और ये B'। तो वी गॉट द इमेज ऑफ AB हियर, राइट, उल्टा मिलेगा ना, राइट, B', ये डैश नीचे आ जाएगा, B' विल बी हियर। ओके, तो ये मिल गया हमको, एक लोकेशन मिल गया। नाउ लेट्स फाइंड द लोकेशन ऑफ HDC। अब HDC के लिए निकालेंगे, विल कैलकुलेट दिस, विल डू द सेम प्रोसीजर जो हमने AB के लिए प्रोसीजर किया है, वही सेम प्रोसीजर फॉर CD के निकालेंगे, राइट। सो फॉर CD, फॉर HCD, फॉर HCD, what is the object distance? UCD is equal to, which is at 75 minus 75 centimeter. Then VCD question mark, focal length कितना है -30 सेंटीमीटर, बराबर। So let's apply the same rule, 1 upon focal length is equal to 1 upon UCD plus 1 upon VCD. This implies that we have to calculate VCD निकालना हमको, the image distance for CD, तो 1 upon VCD is equal to 1 upon F minus 1 upon, ये इधर आके माइनस हो जाएगा, UCD, फाइन। सो लेट अस डू द सब्स्टिट्यूशन, 1 upon VCD is equal to 1 upon F minus 30 minus of UCD कितना डिस्टेंस पे है, दिस इज एट 75 सेंटीमीटर। ओके, तो ये आ जाएगा हमारा 75 सेंटीमीटर माइनस 75 सेंटीमीटर, इसको -1 upon 30 प्लस 1 upon 75, दिस कैन बी रिटन एज 1 upon VCD इज इक्वल टू 1 upon 75 माइनस 1 upon 30। हमेशा इसको उल्टा कर देना है, प्रॉपर लिख लेने का, पहले पॉजिटिव लेने का, उसके बाद नेगेटिव लेने का, ताकि हमको जो फ्रैक्शन, जो सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन ईजी पड़ता है, बराबर। अब यहाँ पे एलसीएम कितना आएगा दोनों का, 150 आएगा एलसीएम, राइट, द एलसीएम विल बी 150। सो आई विल राइट एट द बॉटम, एट द डिनोमिनेटर 150, आई शुड मल्टीप्लाई हियर 2, तो यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाइड बाई 5, सो हियर ऑल्सो मल्टीप्लाइड बाई 5, सो दिस इज 2 minus 5, तो 2 minus 5 कितना आएगा, -3 आएगा, तो 1 upon VCD is equal to -3 upon 150, so this will be -1 upon 50, right। तो let's calculate VCD is equal to -50 centimeter, so we will get the image of this CD, ये जो साइड है, ये जो एज है रेक्टेंगुलर शीट का, उसका इमेज कहाँ पे मिलेगा, एट 50 समवेयर हियर। ओके, लेकिन कितना साइज का मिलेगा वो नहीं पता, वो अभी मैग्नीफिकेशन निकालना पड़ेगा, राइट। सो लेट्स कैलकुलेट द मैग्नीफिकेशन, MCD इज इक्वल टू दिस इज -VCD अपॉन UCD। ओके, -VCD कितना है, -VCD अभी भी निकाला हमने, -50 डिवाइड बाय -50 प्लस हो जाएगा, -50 डिवाइड बाय UCD मतलब दैट इज -75, तो ये कितना आएगा बच्चों, 50 अपॉन -75। सो दिस विल बी मैग्नीफिकेशन फॉर CD विल बी -2 अपॉन 3, 25 2 जा 25 3 जा, तो -2 अपॉन 3 आएगा, बराबर। तो ये आएगा हमारा मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन देन उसके बाद ऑब्जेक्ट साइज कितना है, 3, ऑब्जेक्ट साइज इज 3। ओके, सो लेट अस कैलकुलेट द इमेज साइज। सो HVCD इज इक्वल टू
इमेज साइज फॉर सी डी इज इक्वल टू मैग्निफिकेशन एम सी डी मल्टीप्लाइड बाय -2/3, सॉरी एम सी डी इंटू 3 आएगा हाइट ऑफ दिस, सो इट इज़ -2/3 इंटू 3, 3 कट हो जाएगा -2, तो ये भी इन्वर्टेड आएगा। ओके तो यहाँ पे -2, ओके -2/3 इट इज -2 आया, राइट। आई सी डी इज इक्वल टू इमेज साइज इज -2 सेंटीमीटर। सो वी गॉट हियर दिस इज द हाइट ऑफ सी डी, एच सी डी मिला है यहाँ पे। इमेज ऑफ सी डी का इमेज कितना मिला, 2 सेंटीमीटर, तो 2 सेंटीमीटर में छोटा हो जाएगा वो, तो ये आ जाएगा यहाँ पे एट ए डिस्टेंस ऑफ -50, सो दिस विल बी ये समवेयर हियर, इससे छोटा आएगा। ओके यहाँ पे 2, तो ये जो है ना ये साइज 2 आएगा, 2 सेंटीमीटर। जस्ट जॉइन दिस, सो दिस इज व्हाट द लोकेशन, तो ये डायग्राम बनेगा। तो दिस इज व्हाट द इमेज फॉर्म बाय दिस। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, कुछ नहीं। यहाँ पे हमने क्या किया है वही मिरर फार्मूला यूज किया है। यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर शीट कंसिडर किया है एंड वी हैव कैलकुलेटेड द image distance for AB, image distance for CD, magnification for EB, magnification for CD and distance जो भी निकाला है कितना है, size of image, this we also we calculated and we get calculate. Okay, so just take a screenshot. सेकेंड उसका थर्ड पार्ट भी है, थर्ड पार्ट रहेगा। थर्ड पार्ट क्या है, फॉर द पार्ट ऑफ शीट एट अ सेंटर ऑफ कर्वेचर, उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ पे होगा। ओके अभी मैंने डायग्राम रब कर दिया है। सेंटर ऑफ कर्वेचर विल बी देयर ओनली, राइट, क्योंकि जब भी ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होगा 60 सेंटीमीटर पे, क्योंकि फोकल लेंथ कितना है -30, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर भी एट -60, तो उस पे जो भी पोर्शन होगा जितना भी उसका साइज होगा वो तो उतना ही रहेगा। 3 सेंटीमीटर है तो 3 ही रहेगा, right, so size of will be 3 centimeter only, that position, right, and that center of curvature पे जो part है 60 सेंटीमीटर पे वो वहीं पे मिलेगा। image distance also there only, right, हमारे रूल के हिसाब से, so not to worry, तो लिख लो अगर चाहिए तो। for the part of sheet, for the part of sheet, for the part of sheet at center of curvature, सेंटर ऑफ कर्वेचर पी क्यू, जो मिडल वाली है हमने ए बी सी डी के बीच में जो था, लेफ्ट साइड में ए बी था, सी डी राइट साइड, सॉरी राइट साइड में ए बी था, लेफ्ट साइड में सी डी था, तो दोनों के बीच में जो पार्ट है पी क्यू विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर, विच इज एट अ सेंटर ऑफ कर्वेचर, राइट, उसका साइज कितना था ऑब्जेक्ट का 3 सेंटीमीटर, तो इमेज का साइज भी कितना होगा 3 होगा, लेकिन नेगेटिव रहेगा, -3 रहेगा। ओके सो पी क्यू inside the bracket u p q object distance will be -60 centimeter, -60 centimeter. The image form will be, the image form will be same size, that is I p q is equal to -3 centimeter, and on the same point,
So image will form at this. Okay. So 60 सेंटीमीटर पे क्या होगा यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर. व्हाट इज द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट हियर. ये हमारा ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, ये ऑब्जेक्ट है राइट. तो ये ऑब्जेक्ट का साइज कितना है 3 सेंटीमीटर. 3 सेंटीमीटर. दिस इज ए बी सी और डी बराबर. तो यहाँ पे द पॉइंट एट अ सेंटर ऑफ कर्वेचर दिस पॉइंट. तो यहाँ पे हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट कितना है. हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 3 सेंटीमीटर राइट. लेट दिस साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज पी क्यू. पी क्यू इज द ऑब्जेक्ट. तो उसका इमेज कहाँ मिलेगा, यहीं पे मिलेगा एट हियर ओनली. सो ये जो है दिस इज ऑल्सो 3 सेंटीमीटर. इमेज साइज विल बी -3 सेंटीमीटर बिकॉज दिस पॉइंट इज कमिंग ऑन द सेंटर ऑफ कर्वेचर. और हमको पता है इन केस ऑफ कॉन्केव मिरर whenever the object is kept at center of curvature so you will get the same size at the same point. वहीं पे उसकी इमेज मिलेगी ऑफ द सेम साइज. मैग्निफिकेशन 1 होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, इसलिए जो ऑब्जेक्ट का साइज यहाँ पे 3 है तो उसका इमेज भी 3 मिलेगा एट सेंटर ऑफ कर्वेचर. वही एक्सप्रेशन मैंने अभी डायग्राम में ड्रॉ किया है. सो यू कैन ड्रॉ दी सेकेंड डायग्राम फॉर दी फाइनल इमेज. ओके. तो ये इमेज का साइज कितना है, दिस इज 6 सेंटीमीटर माई नेगेटिव. ये साइज कितना है -2 सेंटीमीटर. दिस इज 2 3 एंड दिस इज 6. यहाँ पे मैग्निफिकेशन 3 बार मिला है, ये हमने कैलकुलेट किया है -2 सेंटीमीटर. नाइन्थ न्यूमेरिकल लेते. लेट्स गो ऑन द 9th न्यूमेरिकल. A car uses a convex mirror of curvature 1.2 meter. Convex mirror of curvature. तो कर्वेचर मतलब दिस द कॉन्वेक्स मिरर, तो राइट साइड में आएगा तो पॉजिटिव आएगा. R इज इक्वल टू प्लस 1.2 मीटर. 1.2 मीटर 120 सेंटीमीटर आएगा मतलब. तो इसका फोकल लेंथ कितना आएगा, F इज इक्वल टू अपॉन 2 किया तो 0.6 मीटर विच इज 60 सेंटीमीटर will be the focal length of convex mirror of the car, right, to see the rear view. As it rear view mirror, a minibus of cross section 2.2 by 2.2 meter is 6.6 meter away from the mirror, right. Estimate the image size. Image size यानी H2 निकालना है राइट. साइज ऑफ इमेज निकालना है. तो यहाँ पे गिवन लिख लेते हैं पहले. फोकल लेंथ मिल गया हमको 0.6 मीटर. मिनी बस अप्रॉक्सीमेटली ऑफ अ शेप ऑफ स्क्वायर. यहाँ पे 2.2 बाई 2.2 दिया है राइट. तो 2.2 मतलब ऐसा आएगा, वो स्क्वायर शेप में आएगा. दिस इज ऑल्सो 2.2, दिस इज ऑल्सो 2.2. सो इट इज इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर. ओके. वो कितने डिस्टेंस पे, विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 6.6 मीटर पे बिहाइंड द कार. ओके. ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर राइट. सो यहाँ पे हम कॉन्वेक्स मिरर को ड्रॉ करते. दिस इज द कॉन्वेक्स मिरर. कॉन्वेक्स मिरर राइट. दिस इज व्हाट द, यहाँ पे इधर फोकल लेंथ आएगा. तो यहाँ पे अगर F लिया तो यहाँ पे भी उतनी डिस्टेंस हम यहाँ पे ले सकते हैं. F इज इक्वल टू ओके. सो ये जो है दिस इज 0.6. दिस विल बी 0.6. बिहाइंड पीछे है ना यहाँ पे. ओके. और बस कहाँ पे, बस इज एट 6.6 मीटर. यहाँ पे बस है 6.6 मीटर फ्रॉम द कॉन्वेक्स मिरर. तो और बस यहाँ पे आएगा. इज व्हाट द बस. ओके. स्क्वायर शेप में ड्रॉ करो, नॉट रेक्टेंगुलर, इट इज स्क्वायर शेप आएगा. तो 2.2 2.2 2.2 फाइन. तो ये जो डिस्टेंस है दिस डिस्टेंस इज 6.6 मीटर फ्रॉम द कॉन्केव मिरर, सॉरी कॉन्वेक्स मिरर ऑफ द कार. देन लेट्स फाइंड द इमेज डिस्टेंस. अभी v निकालेंगे. तो हमारा फॉर्मूला क्या है, 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v राइट. अभी यहाँ पे u दिया है, दिस इज u इज गिवन, u दिया है. सो लेट्स फाइंड v. 1/v इज इक्वल टू
1/0.6, ओके 1/0.6 पॉजिटिव आएगा। एक फॉर्मूला बना देते 1/f माइनस 1/u विच इम्प्लाइज 1/0.6 माइनस जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है 6.6, बराबर। तो 1/v इज इक्वल टू दिस विल बी 10/6 माइनस 1/66, सॉरी 10/66। तो यहाँ पे एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम विल बी 66, जस्ट मल्टीप्लाइड बाय 11 हियर, मल्टीप्लाइड बाय 11 हियर, सो दिस विल बी 110 माइनस 10 डिवाइड बाय 66, तो ये आ गया आपका 100, समथिंग वेंट रॉन्ग, फोकल लेंथ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, अरे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव आएगा ना, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी नेगेटिव, ये नेगेटिव आएगा, राइट। ओके सॉरी यहाँ पे माइनस आएगा, तो माइनस माइनस प्लस होगा, ये दिस विल बी प्लस, दिस विल बी प्लस, सो दिस इज 120/66, ओके। तो v इज इक्वल टू क्या आएगा बच्चों, 66/120, ओके। तो इसका आंसर आएगा आपको, यू विल गेट दिस आंसर अराउंड मोर देन 50% आएगा, सो दिस विल बी 0.55 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर। सो द साइज ऑफ इमेज, सॉरी द इमेज डिस्टेंस विल बी 0.55 मीटर पे इमेज मिलेगी, राइट। उसके बाद क्या पूछा उन्होंने, एस्टिमेट द इमेज साइज, मतलब इमेज साइज मतलब आई निकालना है या H2 निकालना है, ओके। तो H2 विल बी कैलकुलेटेड, अभी H2 निकालेंगे, सेकेंड पार्ट उसका। So what is the formula for lateral magnification? Lateral magnification, okay, m is equal to H2/H1 which is equal to minus v/u। तो v मिल गया, u मिल गया, we can find the H1 भी पता है, right, H1 मतलब this height of the bus, so H2 can be calculated, H2 is equal to H1 multiplied by minus v/u। तो H2 इज इक्वल टू H1 कितना है 2.2 मल्टीप्लाइड बाय माइनस v, अभी हमने निकाला है माइनस v 0.55 डिवाइड बाय ऑब्जेक्ट इज एट केप्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 6.6, ओके। तो 6.6 आएगा विच इज इक्वल टू H2 इज इक्वल टू 2.2 मल्टीप्लाइड बाय माइनस आएगा 0.55 डिवाइड बाय 6.6। तो इसको कैलकुलेट करते हैं, जस्ट सॉल्व दिस, आफ्टर सॉल्विंग दिस यू विल गेट द आंसर H2 इज इक्वल टू माइनस में आएगा, अरे नीचे का माइनस है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये दिस विल बिकम प्लस, तो 0.183 मीटर विल बी द हाइट ऑफ द इमेज ऑफ द बस। बस का जो इमेज है उसका हाइट कितना आएगा 183 सेंटीमीटर और 0.183 मीटर, उसका हाइट कितना था एक्चुअली 2.2 मीटर, दिस इज 2.2 मीटर, बराबर। सो दिस इज व्हाट, सो टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दिस। सबको प्रॉब्लम समझ में आया बच्चों, यहाँ पे ये बस है, यहाँ पे रखी, इसका जो पहला एज है बस का जो पार्ट है ये 6.6 मीटर पे आएगा, ओके। तो वी गॉट द हाइट ऑफ द बस एट 0.183 मीटर। सो नाउ लेट्स द लास्ट न्यूमेरिकल ऑफ दिस, इसका लास्ट न्यूमेरिकल लेंगे, देन वी विल स्टॉप। सिंपल न्यूमेरिकल है लास्ट वाला, 10th न्यूमेरिकल विच इज गिवन इन द क्वेश्चन बाय 10th न्यूमेरिकल। An object is placed at 15 सेंटीमीटर फ्रॉम कॉन्वेक्स मिरर, ओके। तो कॉन्वेक्स मिरर में अब ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड में रखते हैं, u इज इक्वल टू माइनस 15 सेंटीमीटर, ओके। हैविंग अ रेडियस ऑफ कर्वेचर r दिया है, r इज 20 सेंटीमीटर प्लस आएगा, सो f इज इक्वल टू प्लस 10 सेंटीमीटर। कॉन्वेक्स मिरर है ना, उसका फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होगा, ओके। व्हाट दे आस्क टू फाइंड, कैलकुलेट दी फाइंड द पोजिशन एंड काइंड ऑफ इमेज फॉर्म बाई इट। तो इमेज कैसा मिलेगा, कितने डिस्टेंस मिलेगा, राइट। सो फाइंड द नेचर एंड पोजिशन, नेचर एंड पोजिशन,
So you know the formula 1 upon f is equal to 1 upon u plus 1 upon v. Let's calculate 1 upon v. V is equal to 1 upon f minus 1 upon u. 1 upon v is equal to 1 upon 10 minus of minus 15. So 1 upon v is equal to 1 upon 10 plus 1 upon 15. तो 1 upon v is equal to what is the LCM of this? इसका LCM होगा 30. तो इसे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पे 2. सो 3 प्लस 2 डिवाइड बाई 30. सो 1 अपॉन v इज इक्वल टू 5 अपॉन 30. ओके, 5 1 जा 5 6 जा, तो v आ गया आपका 6 सेंटीमीटर. सो इमेज डिस्टेंस विल बी 6 सेंटीमीटर फ्रॉम द कॉन्वेक्स मिरर. और पॉजिटिव आ रहा है, प्लस आ रहा है, राइट. इमेज डिस्टेंस इज प्लस, राइट, मतलब ऑन द राइट साइड ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर. तो विच इज वर्चुअल. ओके, सो इमेज इज वर्चुअल बिकॉज वी इज पॉजिटिव. वी पॉजिटिव आ रहा है ना, तो वी पॉजिटिव कब होगा? व्हेन द इमेज विल फॉर्म ऑन द राइट साइड ऑफ द मिरर. सो इट इज वर्चुअल एंड इरेक्ट. इरेक्ट ऑफ कोर्स इरेक्ट ही मिलेगी. वर्चुअल एंड इरेक्ट, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर में कहीं भी ऑब्जेक्ट रखो, इफ यू कीप द ऑब्जेक्ट एनीवेयर एल्स यू विल ऑलवेज गेट द इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट. देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ रियल इमेज बिकॉज इट इज कॉन्वेक्स मिरर. कहीं भी ऑब्जेक्ट रखो, राइट. अगर यही रीडिंग को, यही इसको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को अगर आपने कॉन्केव मिरर लिया तो यू विल गेट समवेयर एल्स नेचर एंड उसका साइज, इमेज वगैरह डिस्टेंस अलग अलग मिलेगा. यू विल नॉट गेट वर्चुअल, इट विल बी रियल मिलेगा, राइट. सो ओके बच्चों, आज इतना ही. नेक्स्ट स्टार्ट हम करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. अगला जो हमारा टॉपिक है दैट इज द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. जो स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन उसका हम वापस रिवीजन करेंगे. तो अब तक हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पार्ट खत्म हो गया. द नेक्स्ट पार्ट विल बी द रिफ्रैक्शन. उसके बाद टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. ओके, सो चलो, हैव अ गुड डे, बाय बाय, सी यू, टेक केयर.